So let's start our lecture number 5 on electric charges and electric fields. So last दो lecture में हम लोग we were studying into the electric fields. हमने electric fields में सबसे पहले देखा कि point charge की वजह से electric field क्या आ रहा है, and then from that we have extended our discussion कि because of extended bodies like line, surface and because of the volume what is our electric field is coming. So basically अभी तक हमने line और surface extended bodies का ही हमने electric field निकाला है, volume का भी नहीं निकाला है. Volume का we are going to do that once we are going to start a discussion on the Gauss law. ठीक है, Gauss law जब पढ़ेंगे तब there at that time we are going to discuss our volume charge distribution to find out the electric field because of electric field. We are going to find out the electric field because of volume charge distribution when we are going to study the Gauss law. ठीक है. सो हम लोगों का हमारा डिस्कशन था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द चार्जेस. हमने देखा चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस से वी मूव ऑन टू द फोर्स. कूलम फोर्स पे आए, बिकॉज ऑफ चार्जेस फोर्स जनरेट हो रही है एंड कूलम फोर्स में हमारी देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्शन एज ए डिस्टेंस, सो जिसकी वजह से वी शिफ्टेड आवर थिंग विच इज़ मोर यूजफुल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया पॉइंट चार्जेस की वजह से एंड द एक्सटेंडेड बॉडीज़ की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा. आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कवर अप वन दिस टॉपिक वॉज लेफ्ट इन बिकॉज वी नीड टू कवर अप व्हेन वी वर स्टडिंग द चार्जेस, तो तब ये रह गया था. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. सो दिस एक्सपेरिमेंट gives you an idea about why the charge is quantized and what is the minimum value of charge. So this experimentally proved कि the charge is quantized. ठीक है, so एक property हमने देखी थी चार्ज की कि charge is quantized. It is exist in the multiple of E only. So we are going to see that, and what is the minimum value of E also, that is also we got it from the Millikan oil drop experiment. Second, we are going to see electric field. हम लोग extended bodies के दो और extended bodies देखेंगे, these are quite important. ठीक है, so ये दो extended bodies और देखेंगे, metal sheet and the parallel plate. ठीक है, ये दो extended bodies देखेंगे, इनके बीच में electric field क्या होता है. Then we are going to see another important topic is the field lines, that is a visualization. अभी तक हमने जो electric field पढ़ा था, that electric field is all about the mathematics. हमने formulas पढ़े थे, we apply the maths in that, but then to visualize the electric field कैसे दिखता है, for that visualization is been conceptualized by Michael Faraday. So we are going to study that electric field lines. ठीक है, with one charge and with two charges and with multiple charges क्या होता है. ठीक है, we are going to study the important properties of field lines. Then in the last we are going to see the electrostatic shielding देखेंगे कि it is a property of a conductor. We are going to see because of this property only we could able to get the Faraday cages also. So we are going to see that also. Electrostatic shielding continuous and the non discontinuous वाली दोनों देखेंगे electrostatic shielding. ठीक है, और अगर टाइम बचा तो हमारा, और आज हम फिर ये वाला पार्ट भी देखेंगे. इसमें it is nothing but it is a combination of your mechanics and the electrostatics. So charge particle के ऊपर if the charge particle is moving, so if it's moving, so it must be having the mechanic properties also, and there is a force coming from the electrostatic force भी आ रही है उसके ऊपर. so दोनों force का combination जो इसकी mechanical forces हैं plus electrical forces हैं, दोनों force के combination की वजह से charge move कर रहा है, and we are going to study the motion of that charges. अगर time बचा तो we are going to cover it today itself, or otherwise we are going to cover it tomorrow. Okay, so let us begin. We'll start with the Millikan oil drop experiment. Okay, so Millikan oil drop experiment में हमने देखा कि it is going to measure the charge of electron. पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताएगा, what is the electron charge, जो कि हम लोगों ने अभी तक we have done it 1.6 into 10 to the power minus 9 10 coulomb. ठीक है, this is the charge of a electron, but we have got it mathematically, but now with the experimental proof we are going to get this charge of electron. ठीक है, और ये एक और चीज़ बताता है कि electric charge is quantized. ठीक है, these two conclusion we are going to get it from Millikan oil drop experiment. This is a simple apparatus कि एक बॉक्स के अंदर he kept two plates which has been charged with the voltage. ठीक है, एक constant voltage इसको provide करेगा. because of that electric field will be developed into this in this direction. ठीक है, ये direction of electric field हो जाएगी. this is my positive charge. so ऐसे ये प्लेट्स को I'll be connected with positive and negative terminal से, and this will be my positive charge, this plate will be the negative charge. ये positive plate में I'll make a hole into it, एक छोटा सा hole बना देंगे जिसके थ्रू यहाँ से ये ऑयल स्प्रे करेगा. ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स इस होल के थ्रू ड्रॉप करके नीचे गिरेंगी. ठीक है, ये होगा, और फिर यहाँ से I'll supply the
X-ray from X-rays to that, so that this charged particle will get ionized either positive or the negative. ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल को आयनाइजेशन के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द एक्सरेज. यहाँ से ये ड्रॉप कर रही होंगी जो भी मेरी ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगी एंड दे गॉट चार्ज. ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो रही होंगी. सो दे आर गेटिंग, सो वी एडजस्ट द एक्सरेज इन अ मैनर कि जो यहाँ से ड्रॉप फॉल हो रही होंगी दे गेट नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, कॉन्स्टेंट वोल्टेज, वी आर मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज बिटवीन दीज टू प्लेट्स. ठीक है, इन दोनों प्लेट्स में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ई. ठीक है, ई इस डायरेक्शन में है और द ड्रॉपलेट्स विच आर फॉलिंग डाउन विच आर द नेगेटिवली चार्ज. सो इस पे जो फोर्स आएगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन, Q इंटू ई. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Then there is a telescope. From this telescope, Millikan is observing the droplets. Okay, so that is the apparatus. Now we are going to see what he has found out. So drops get negatively charged. So क्या होगा यहाँ पे कि because of mg it is tends to fall down because of its weight, but इसके ऊपर QE एक ऊपर लग रहा होगा जिसकी वजह से it will keep on hanging in middle. ठीक है, इसको ये ऑब्जर्व करेगा यहाँ से. ठीक है, सो Q यहाँ पे जब ये हैंग कर रहा होगा, so that means it is at equilibrium position. So at that point Q is equal to QE is been balanced, mg is been balanced by QE. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मेरा, so the force will be QE in the up direction. ठीक है, यहाँ पे we got the charge कितना आ जाएगा इस पर, we'll find the value of charge. जितना जितना मेरा यहाँ से ड्रॉप होता जा रहा है we'll find the value of that charge, जितनी जितनी ऑयल ड्रॉप होती जा रही है. So he has used multiple set of oils, not just one oil, and he has used multiple shapes of oil also. ठीक है, यहाँ से जो ड्रॉप हो रही है डिफरेंट रेडियस से भी, डिफरेंट रेडियस की भी ड्रॉप्स डाली थी एंड डिफरेंट ऑयल्स की भी ड्रॉप डाली थी, जिसकी वजह से ही इज़ कीप ऑन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ चार्ज. ठीक है, सो ये चार्ज कितना आ गया यहाँ से, mg कितना आ गया मेरा, mg को ये वी इक्वेटेड, चार्ज कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिवाइडेड बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ माई वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू स्टडी देयर. ठीक है, सो बट राइट नाउ फॉर द सेक जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ माई वोल्टेज. ठीक है, सो V बाई डी आ गया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने V बाई डी, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में V आ गया, ऊपर डिनोमिनेटर में मेरा D चला गया. यहाँ पे मैंने mg को ओपन कर लिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इज़ माई, ये मेरा r हो गया मेरा रेडियस ऑफ माई ईच ड्रॉप. ठीक है, रेडियस ऑफ माई ईच ड्रॉप. नाउ वन इज़ दिस एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम देयर ही कुड एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q. और जितनी बार भी वैल्यू फाइंड आउट करी Q की, तो Q का जितना भी आंसर आ रहा था, इधर इट इज़ कमिंग 1.6, 3.2, 6.4, ठीक है, 9.6. सो आंसर इज कमिंग इन दिस ओनली. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ही कुड एबल टू गेट इट 1.6 इंटू 10⁻⁻19. दैट इज अ मिनिमम वैल्यू ही गॉट इट, बट एवरी टाइम ही इज गेटिंग इन द मल्टीपल ऑफ 1.6 ओनली. जितना भी ये चार्ज आ रहा था एवरी टाइम ही इज गेटिंग इन द मल्टीपल ऑफ 1.6 ओनली. ठीक है, सो दिस इज ही इज कंक्लूडेड, आफ्टर सीइंग दिस ही इज कंक्लूडेड कि मिनिमम चार्ज इस पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इट इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ n इंटू ई. इट इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ n इंटू ई. चार्ज विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ n इंटू ई, क्योंकि जितनी बार भी इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, जितने भी नए ऑयल्स के साथ किया, और जितनी बार भी ड्रॉप रेडियस चेंज करके किया, एवरी टाइम ही इज़ गेटिंग द वैल्यू दिस ओनली n इंटू ई. ठीक है, मिनिमम ई इतना, और ऑलवेज इट इज़ कमिंग लाइक मल्टीपल ऑफ दिस 1.6, 3.2, 6.4, 9.6, लाइक दैट ओनली. इट इज़ कमिंग 10.08, लाइक दैट इट वॉज ओनली कमिंग. ओके, सो this was he is concluded. Another then next after this he switched it off, this electric field he switched it, so this voltage he switched it off, so drop started falling. Drop जैसे fall करने लगा, then there is a air inside. ठीक है, then it because of that it got a because of the viscosity of the drop, it attained a terminal velocity that we are going to study in the fluid dynamics. जब हम पढ़ेंगे तो there we are going to study the Stokes law. ये क्या होता है कि जब भी मेरी कोई ड्रॉप होती है that is falling down. ठीक है, so it is falling down, so it attained a terminal velocity, a constant velocity attain कर लेती है. At that point the viscous force will get equal to
mg, ठीक है. विस्कस फोर्स विल गेट इक्वल टू mg एट दैट पॉइंट. सो एट दैट पॉइंट देर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द ड्रॉप. सो इसके अंदर एक्सेलरेशन कैसे होगी, mg नीचे लग रही होगी और ये ऊपर इस पर एक विस्कस फोर्स आ रही होगी. दैट इज़ लाइक अ एयर ड्रैग इस पर आ रहा होगा, दैट इज स्टॉपिंग इट, ठीक है. दैट इज काइंड ऑफ ए एयर ड्रैग जिसकी वजह से विस्कस फोर्स आ रही होगी. विस्कस फोर्स वी फाइंड इट थ्रू द स्ट्रोक्स लॉ. स्ट्रोक्स लॉ कहता है दैट इज 6 पाई नीटा r इंटू वी टी. वी टी इज़ माई टर्मिनल वेलोसिटी एट विच नाउ द ड्रॉप इज मूविंग. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्ट्रोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी एवरीथिंग जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ माई स्ट्रोक्स लॉ. सो इसमें क्या होता है, मेरा mg से फॉल कर रहा है ये मेरा. सो mg इज़ बीन बैलेंस्ड बाय माई viscous force Fv, ठीक है. It is a friction that the in between the it is kind of a friction between the liquids, ठीक है. viscous force क्योंकि air is also a liquid, ठीक है. air is kind of air is a gas, but it contains, it is can say it is when the drop is falling down, so air is providing a resistance to it. So that resistance is coming as a विस्कस फोर्स, ठीक है. सो विस्कस फोर्स इज बैलेंसिंग माई mg और उसके बाद मेरी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्टेड फॉलिंग विच वी कॉल अ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है. सो नाउ वी इक्वेट दिस विस्कस फोर्स विद माई mg, ठीक है. हियर वी इक्वेट दिस विस्कस फोर्स विद माई mg टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस r, and then this we got it r, and then this r we are going to put it in this equation, ठीक है. यहाँ पे इस equation में डाला तो मेरा चार्ज आ गया, this is my charge, ठीक है. Now after this he started everything is been known. After this he started getting the value of q for multiple drops with different oil, and every time he is getting some integer of e only, 1e 2e 3e, और मिनिमम इसके पास जो चार्ज आया था जैसे कि हमने देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मिनिमम चार्ज आया था. उसके बाद जितना भी वैल्यू आ रही थी चार्ज की वो हमेशा e 2e 3e with multiple oils multiple times he has done. So he has concluded after that the charge is quantized, ठीक है, और उसकी मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज e, ठीक है. सो दैट्स व्हाट द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट. सो डोंट वरी अगर ये नहीं समझ में आया, इट इज़ जस्ट टेक इट, कंज्यूम कर लो इसको इस तरीके से कि इट इज़ लाइक अ बैलेंसिंग फोर्स फॉर माई mg, ठीक है. इट्स अ बैलेंसिंग फोर्स फॉर माई mg once I switch off my this voltage across the plates, ठीक है. नेक्स्ट विल मूव ऑन. सो दोनों तरीके से ही हैज़ फाइंड आउट एंड ही हैज़ सीन के दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड. Okay, so let's move on to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं. कल हम एक yesterday we were studying this ना charges because of the ring and all. so ring के ऊपर charges हैं मेरा. अगर ring मेरी continuous full ring है मेरी है, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा जो चार्ज सेंटर पे होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट की इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, बट जो डायमेट्रिकली इसके अपोजिट होगा उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और दोनों मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे. तो नेट हर किसी का डायमेट्रिक अपोजिट आएगा और जिसकी वजह से जो मेरा जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज सारे कैंसिल हो जाएंगे. बट क्या होगा हमारा कि इसमें हमने क्या किया, एक पोर्शन कट कर दिया हमारा इसका, ठीक है, एक पोर्शन कट कर दिया. ऐसा हमने क्वेश्चन देखा था कि एक रेगुलर पेंटागन पे हमने 4 जगह पॉइंट्स रखा है, 5वीं जगह नहीं रखा. तो क्या होगा, सेम वे उसी का एक्सटेंशन है ये कि हमारा जो रिंग है वो पूरा कंप्लीटेड है, इस पर चार्ज क्यू स्प्रेडेड ओवर है, बट एक इतना सा कट दे दिया मैंने स्प्रिंग को. अब मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे, ठीक है. अब हम एज्यूम करते हैं अगर ये वाला भी होता तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, 0, ठीक है. इस पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता अगर ये वाला पॉइंट भी होता. तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर दैट विल बी माइनस ऑफ दिस, ठीक है. सो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ वाई, ये वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले विल गेट कैंसिल बिकॉज ऑफ दिस वाले डायमेट्रिक, ठीक है. अब जो बचेगा इसको कैंसिल करने के लिए कुछ भी नहीं है. सो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंप्लीट वन, ठीक है. इसका जो होगा दैट विल बी द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. विल फाइंड द चार्ज ऑन दिस. द चार्ज ऑन दिस इज वी हैव द विड्थ W. सो टोटल पे चार्ज है मेरा, जो चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, टोटल पे चार्ज क्यू है, डिवाइड बाय 2πr इसका पेरीमीटर, इनटू ये किया मैंने W. सो आई हैव गॉट द चार्ज ऑन दिस. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विल बी kq/r². दिस इज माई r ओनली, सो आई हैव गॉट द वैल्यू हियर दिस. ओके, सो दिस इज बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कि अगर मेरा कट है कोई तो उसकी वजह से क्या होगा. सेम वे यू कैन फाइंड आउट एन हेक्सागन
अगर हमने पेंटागन वाला केस देखा था, सेंटर पे अगर सारे चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, बिकॉज डायमेट्रिकली अपोजिट सिमेट्री की वजह से सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरा कोई सपोज ये वाला चार्ज नहीं दे रखा, बाकी सारे चार्ज दे रखे हैं, एवरी चार्ज इज गिवन, ये वाला चार्ज नहीं दे रखा, तब आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इन चारों की वजह से जो पाँचों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जो माइनस हो जाएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो सेम वी हैव डन इट हियर, और अर्लियर ऑल्सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन रेगुलर पेंटागन। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक क्लॉक है, उसके ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं -12 Q। सो जिस तरीके की मेरे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके के चार्जेस रखे हैं, -Q, -2Q, -3Q, -4Q। सो मेरे को बताना है कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो ये जो होगा, लेट्स सी कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना है और कितना कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कितना चार्ज है और कितना कैंसिल हो गया, कितना नेट बन रहा है। सो इसमें देखते हैं, इस वाली डायरेक्शन में Q यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 में 1 से स्टार्ट करते हैं इसमें, और इस डायरेक्शन में इट इज़ कमिंग, डिफरेंस इज कमिंग -6, सो इन दिस डायरेक्शन वील टेक इट, ठीक है। इसमें और इसमें क्या है, अगेन -6, इसमें और इसमें क्या, अगेन -6। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग लाइक दिस, ये इस डायरेक्शन में, ये मेरा ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। बाकी ये वाला कैंसिल हो गया होगा, ये सारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 6E की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, 6E इस डायरेक्शन में। ये बिकॉज इसका जो होगा यहाँ पे -6 ऐसे कह सकते हैं, 6Q प्लस और -6Q और -Q जैसे रखा हुआ है, तो -Q से -Q वाला कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा -6Q की वजह से बचेगा, ठीक है। एंड दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। -6Q, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव Q रखूँगा, सो दैट विल बी ड्रैग टुवर्ड्स हेयर, सो दैट्स वाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग फॉर दीज टू, इट विल बी दिस, इन दोनों की इस डायरेक्शन में, इन दोनों की इस डायरेक्शन में, इन दोनों की ये वाला आएगा, इन दोनों का ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इन दोनों का ये आएगा, और सबका 6Q की वजह से आएगा, ठीक है। अब मेरे से पूछा है बस ई नेट का किस टाइम पे, जो टाइम पीरियड बताना है इसमें क्या टाइम शो कर रहा होगा, ठीक है। ये मेरा आ गया, ये मेरे सारे एरोज आ गए। अब इसको फिर फर्दर आई विल जस्ट फर्दर टू द वेक्टर एडिशन, वेक्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस, वेक्टर एडिशन करेंगे, ये सारे वेक्टर्स है ना। सो इन दोनों का क्या होगा मेरा, इस डायरेक्शन, इन दोनों का ये मेरा जो है दैट इज़ नथिंग बट 180 डिग्री, इन दोनों का आएगा इस डायरेक्शन में। इसका और इसका देखूँ तो भी उसका इस डायरेक्शन में ही आएगा, इसका और इसका देखूँ, सॉरी इसका और इसका देखा, इट इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों के हाफ एंगल पे आएगा ना, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, सो इन दोनों का इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका एंड इसका, बिकॉज एवरीवन इज 6 सेम मैग्नीट्यूड है, सो इट विल बी कमिंग इन, दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम। इसका पहले हमने वी आर गोइंग टू सी इट, इसका इस डायरेक्शन में आएगा, इसका इस डायरेक्शन में आएगा, इसका जस्ट अ सेकेंड, ये 3 का और 4 का, ठीक है, ये दोनों -6 है, इसका इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इसका और इसका भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका और इसका भी इसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो ठीक है, इन सब की वजह से इट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी, so if we see the net electric field will comes out to be in, ये मेरे ओके सॉरी दिस वन विल नॉट बी देयर, सो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे केवल ये डायरेक्शन के हैं, आई गॉट कन्फ्यूज। सो ये 6 ये हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हैं। अब इसका पहले इसका देखते हैं, पहले इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का नेट किसका आएगा, ये सेंटर के इसमें आएगा। सेम वे इसका और इसका देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर इन दिस डायरेक्शन, इसका और इसका देखेंगे दैट विल ऑल्सो कम इन दिस डायरेक्शन। सो सबका जो रिजल्टेंट आएगा, एवरी वंस रिजल्टेंट विल कम इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। और ये क्या होगा 9 और 10 के बीच में, दैट मीन्स द टाइम विल बी 9:30, सो टाइम विल बी 9:30, ओके। सो विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ मेटल बॉडी. सो हमारे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ मेटल प्लेट समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग व्हाइल व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, बट जस्ट ए रिविजन ऑफ दैट. और सेकेंड हमारे को ये समझने के लिए टू स्टडी द पैरेलल प्लेट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल प्लेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा मेटल बॉडी है सो द हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू इट. ठीक है, सो वी हैव सीन इट. अगर किसी मेटल बॉडी पे चार्ज दिया जाता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, सो हमने देखा था इस पे अगर ये मेटल बॉडी है इस पे मैंने चार्ज प्लस क्यू दे दिया, सो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन दिस चार्जेस, दिस चार्ज विल बी स्प्रेडेड. ये चार्ज सारे स्प्रेड होना शुरू कर देंगे, इट विल गो आउट और ये चार्ज सारा मेरा आउटर सरफेस पे आ जाएगा. दिस चार्ज विल कम ऑन द आउटर सरफेस. मैक्सिमम जितना मिनिमम जितना ये अभी मतलब हमने देखा था इस तरीके से कि ये प्रेशराइज सिचुएशन में है, जितना ये लीस्ट प्रेशर पे आएंगे, लीस्ट प्रेशर पे क्या है जब ये बिल्कुल अपने दूर दूर पोजीशन पे चले जाएंगे. ठीक है, म्यूचुअली रिपेल करके अपना एक इस पोजीशन पे ये मैक्सिमम इस पोजीशन पे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम इस पोजीशन पे चले गए. जितना ये अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस से. ठीक है, अभी ये स्ट्रेस पोजीशन में. ठीक है, सो ये इस दे विल गो इन द आउटर सरफेस. ठीक है, दे स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस. और ये आउटर सरफेस पे किस तरीके से स्प्रेड करेंगे विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन द फर्स्ट लेक्चर कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे द चार्ज डेंसिटी विल बी हायर व्हेन वी हैव so charge density will be higher because इसका radius of curvature small है, so charge density will be higher here, charge density will be lesser in this, and the middle one is this. ठीक है, because इसका radius of curvature is in middle of this and this small one. ठीक है, so it is depending on इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिसका छोटा रेडियस होगा उस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा. ठीक है, चार्ज डेंसिटी उस पर उतनी ज़्यादा होगी. राइट, सो हमने देखा चार्ज गिवन किया, म्यूचुअली रिपेल करके स्प्रेड हो गया. स्प्रेड किस तरीके से हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस स्क्वायर. ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा स्फीयर है तो इसका मतलब कि इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड at each and every place because radius is small at each and every, radius of curvature is same at each and every point. ठीक है, then E inside will be 0 because the charge is totally outside, so there will not be any E inside, so E inside will be 0 at the time of electrostatic medium. So charge जब मूव कर रहे होंगे यहाँ से सेंटर से, ये वाले जो मैंने चार्ज दिए हुए हैं ये सेंटर से मूव करके जब ये बाहर जा रहे होंगे, at that point it is not an equilibrium position, that is not an electrostatic point. Electrostatic कब आएगा? जब मेरा चार्ज इनसाइड 0 हो जाएगा, ये सारे के सारे चार्जेस मेरे बाहर आ जाएंगे. दिस ऑल चार्जेस विल कम आउटसाइड एंड देर इज़ नो चार्ज इनसाइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड inside is 0. At this point I can say it is an electrostatic equilibrium point आ जाएगा. ठीक है, so this we have already studied. Now we will see further we are going to extend our discussion on this कि electric field due to a large uniformly charged metal sheet. हमने लास्ट में देखा था we are having the very thin sheet. ठीक है, इसकी वजह से if we are having this thin sheet है तो उसका एक ही सरफेस है. ठीक है, एक पतली सी शीट है, उसका सिंपल एक ही सरफेस है. ठीक है, तो उस पर सारा का सारा चार्ज एक लाइन की तरह इस पर स्प्रेड हो जाएगा इस सरफेस पे. ठीक है, ये वाली शीट है, बहुत ही पतली शीट है, जैसे कि हमने डिस्क वाले केस में देखा था ना, अब इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट का हमने देखा था इसमें. सो इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट की वजह से मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई डिस्टेंस के किस पॉइंट पे मेरे को देख रहा हूँ, एंड इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इट इज़ क्वाइट अ थिन शीट. ठीक है, तो इसके एक ही सरफेस है, तो एक सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज आ गया. ठीक है, बट इफ़ आई एम हैविंग द मेटल शीट का मतलब इट इज़ हैविंग द 2 सरफेसेस. ठीक है, 2 सरफेस हैं, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये. नाउ वट एवर द चार्ज यू आर गोइंग टू गिव इट टू इट विल get spread over on both the surfaces. Or this is also large uniformly means it is also infinitely big sheet, or we are observing the electric field quite near. ठीक है, near to the surface देख रहे हैं electric field, then in that case we can assume it's a large uniform sheet. यहाँ पे इस केस में क्या है, जब हमारा जो मेटल शीट हमने देखी इट इज़ हैविंग 2 सर्फेसेस, सो दोनों सरफेस पे आई एम हैविंग द पॉजिटिव चार्जेस. दोनों सरफेस पे मेरे पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड ओवर हो जाएंगे इफ आई एम गोइंग टू गिव वट एवर द चार्ज इन टू इट. अब नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैंने इसको जो भी चार्ज दिया है दैट विल बी स्प्रेड ओवर ऑन टू द सरफेस. इनसाइड जो होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी 0 एंड आउटसाइड देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो हमने देखा था मेटल के अंदर अगर कंडक्टिंग है, मेटल इज ऑलवेज कंडक्टिंग, सो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी 0. सो हियर ऑल्सो वी कैन सी इसकी वजह से प्लस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस प्लस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जो सेंटर में होगा दैट विल कम्स आउट टू बी 0. एंड बिकॉज और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है. सॉरी,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वजह से इनसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। सो दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन फॉर माई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज मेटल है, कंडक्टिंग है, इट इज़ प्रूविंग अर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बी पे देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नियर टू दिस शीट। पॉइंट बी पे देखते हैं, इसकी वजह से क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा इसकी वजह से, एंड सेम इस शीट की वजह से जो ये वाली शीट है इसकी वजह से भी जो आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, एंड बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दे विल बी एडेड अप एंड वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो इस शीट के परपेंडिकुलर हमारा जो परपेंडिकुलर पॉइंट पे वी आर हैविंग सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। शीट के हमने जो लास्ट में देखी थी दैट इज़ अ थिन शीट, इनफाइनेटली लॉन्ग थिन शीट, उसका एक ही सरफेस था, तो उसमें आता था हमारा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमारा अगर यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल शीट है, इन दैट इट इज़ गोइंग टू कम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, मेटल शीट, सो इसके सरफेस पे चला जाएगा पूरा का पूरा पॉइंट, और वहाँ पे हमारी जो शीट थी इट इज़ नॉट अ मेटल शीट, वी कैन से इट इज़ एन इंसुलेटिंग शीट, तो उसके सरफेस पे ही नहीं रहेगा, उस पर चार्ज मेरा एक लोकलाइज पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, उस पर चार्ज लोकलाइज पोजीशन पे रहेगा। ओके, और अनदर वे इज टू सी दैट वाज क्वाइट अ थिन शीट, इट इज़ ओनली हैविंग द वन सरफेस। ठीक है, और हेयर यहाँ पे मेटल इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई द चार्ज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द सरफेसेस, राइट। Now we'll see the charge to understand this parallel plate के ऊपर कैसे हमारा if we put a parallel plate in the electric field, how the charges got distributed. To understand that, we'll see the concept charge induction in a metal bodies. ठीक है, whenever you put a metal body or a conductor in the electric field, so how the charge get induced onto it. ठीक है, so that's a concept we are going to study here. इसके अंदर हमारा क्या है कि if I'm having this body which is a metal body, ये मेटल बॉडी है मेरी, इसके अंदर आई जस्ट पुट दिस मेटल बॉडी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब क्या होगा इसकी वजह से माई चार्जेस बिकॉज ऑफ दिस मेटल फील्ड, जो मेरा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, इट इज़ अ मेटल बॉडी ना, सो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्टार्टेड मूविंग विद QE फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, QE फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो दे विल स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जो मूव करेंगे दे विल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग दिस साइड। ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन आता रहेगा। ठीक है, दैट दे विल स्टार्ट विकेटिंग द प्लेस, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस साइन आता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक अ चार्ज इंडक्शन इज हैपनिंग। अगर अभी, और ये कब तक होता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये मेटल है और ये कब तक होता रहेगा, फिर अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसकी वजह से भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, EI। ठीक है, सो दैट इज़, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर हैविंग। तो ये मूवमेंट कब तक चलता रहेगा, अगर मेरा E इज़ स्टिल ग्रेटर देन EI है। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन ड्रैगिंग अप टू दिस पॉइंट। वो कब तक होता रहेगा, जब तक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। वो कब आएगा, E इज इक्वल टू EI पे, जब मेरा बाहर का और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। ये होएगा, सॉरी, यहाँ पे EI है मेरा E इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। ठीक है, चार्जेस कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, ये नेगेटिव इधर मूव कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कब तक बढ़ता रहेगा, इसकी वैल्यू कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ये इतना नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ जाता, इतना पॉजिटिव नहीं आ जाता, और ये EI विल गेट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट माई नेट E inside is 0. My net E inside is 0. At that point I can say it is at a electrostatic equilibrium. ठीक है, सो ये चार्जेस हैं when we the electrons because of the force QE started drifting towards the left surface and the induced charges, because of this induced charges, ये जो negative positive मेरे induce हो रहे हैं, because of that electric field will be induced in this direction, and which is opposite to my इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अभी भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इंस्टेंस एट वन स्टेज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टिल बी ड्रैगिंग, बिकॉज अभी इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लग रही है, एक तो ये फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरी अभी भी QE जाता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन मूविंग एंड कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग हेयर एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस QE। ठीक है, धीरे धीरे ये QE इतना पहुंच जाएगा, जब व्हेन दिस QEI इज इक्वल टू QE, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा मेरा। ठीक है, सो दैट इज़ EI इज इक्वल टू E। जब ये हो जाएगा मेरा, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
inside electric field will get 0. At this point I can say it is my electrostatic equilibrium position and this is my charge distribution. Okay, ठीक है, ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पहुंच गया. व्हेन E इज इक्वल टू E0, दैट मीन्स E will get equal to E induced and all the charges are at rest. E inside will get 0. Okay. Now we'll understand the same concept in the charge induction in a parallel metal plate. अगर मेरी दो parallel metal plate रखी हुई है मेरी, ठीक है. So in that, metal plate के अंदर हमने देखा था charge will get distributed on both the sides of the plate, ठीक है. सो यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नाउ अर्लियर हमने देखा था, हमने चार्ज दिया था. अब हम क्या कर रहे हैं, इस मेटल प्लेट को, दो मेटल प्लेट ले रहे हैं, इन दोनों को वी आर पुटिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अब हम देखते हैं इसके अंदर चार्ज किस तरीके से इंड्यूस हो रहे हैं. सो इनिशियली द मेटल प्लेट्स आर अनचार्ज एंड दे प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है. देयरफॉर अब इसके अंदर क्या होगा, बिकॉज ऑफ ई मेटल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से नेगेटिव्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है. सेम वे इंड्यूस होकर नेगेटिव यहाँ पे आ जाएंगे एंड पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे. इस तरीके से चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि मेरा जो अंदर के पॉइंट्स हैं, ये सपोज ये मेरी शीट है, शीट के अंदर ये EP है और इधर भी EP है, इसके अंदर का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. तब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, जैसे हमने इस केस में देखा था ना, ऊपर वाले केस में. सेम वे कि अंदर जब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता तब तक ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा. जिस पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड जो मेरा कंडक्टर के अंदर का इनसाइड है या मेटल के अंदर का इनसाइड है, उसके अंदर जब मेरा EP 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल गेट 0. एट दैट पॉइंट माय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटेड, आई हैव रीच्ड माय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है. सो अब वो हो चुका है इसमें, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज बीन रीच्ड एंड इट इज़ हैविंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, माइनस, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन हेयर. सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है. सेम वे यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है. एंड देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड. अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड. यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे तीन रीजन बन जाएंगे मेरे, E1, E2, E3, तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है. अब इस जगह देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बिकॉज इसकी वजह से इफ़ इसी इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, ठीक है. इस वाली की वजह से, इस पूरे प्लेट की वजह से अगर मैं देखूँ ये वाले पॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव की वजह से इधर होगा और नेगेटिव की वजह से इधर होगा. दोनों की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल कम्स आउट टू बी 0. सेम वे अगर इसकी वजह से मैं इसी वाले पॉइंट पे देखूँ, सो सेम वे इसकी वजह से भी इस वाले पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है. इसकी वजह से भी फॉर दिस एट दिस पॉइंट इफ आई एम गोइंग टू सी, इसकी वजह से इधर पुश करेगा, नेगेटिव की वजह से इधर आएगा, सो इट विल कम्स आउट टू बी 0, बिकॉज दोनों मेरे सेम है. अब सेंटर पे देखते हैं, सेंटर पॉइंट में क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से इधर मूव करेगा, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगा. नेगेटिव की वजह से भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी. अगर मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव इधर मूव करेगा, और यहाँ नेगेटिव की वजह से ये भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पर. सो दोनों मेरे ऐड अप हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे दोनों फील्ड मेरे ऐड अप हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है. ये दोनों मेरे फील्ड ऐड अप हो जाएंगे एंड माई वैल्यू विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस सिग्मा इज़ नथिंग बट माई सिग्मा इंड्यूस, जो मेरा यहाँ पे हुआ है सिग्मा इंड्यूस, ठीक है. एंड दिस E2 विल बी इक्वल टू माई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. E2 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन हैज़ कम, और यहाँ से मेरे को अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, जस्ट टेक इट हेयर, सिग्मा इंटू E इज़ माई सिग्मा इंटू एक्सटर्नल फील्ड इज़ माई, बिकॉज इफ़ यू सी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, E है, अंदर जाके 0 हो जाएगा, और फिर इस पोजीशन पे भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही रहेगा, ठीक है. यहाँ पे भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ माई E ओनली, फिर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E. सो यहाँ पे जो मेरा E2 आ रहा है, E2, सो सॉरी, इस पोजीशन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, एंड हेयर माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी देयर इन नियर टू दिस सर्फेसेस. यहाँ पे नियर टू दिस सर्फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस, ठीक है. जस्ट रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस दिस थिंग विल बी 0, ओके. बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस दिस थिंग विल बी 0. अब इसके अंदर जो आएगा मेरा, दिस कम्स आउट टू बी, वी हैव डन इट, यहाँ से E2 कम्स आउट टू बी, जो मेरा ये वाला फील्ड आएगा, E2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. इट विल गिव मी द वैल्यू सिग्मा I ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा I, दैट टिल कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट इनटू E, ओके. सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट कि मेरा कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी आया, ओके.
So next we'll move on. Lines of force, another, this is also quite an important topic, lines of force. ठीक है. सो लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ना हमारा, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, इट इज़ ऑल द मैथमेटिकल थिंग, वी कुड नॉट एबल टू विजुलाइज दोज थिंग्स. लाइन्स ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज बीन गिवन बाय माइकल फैराडे सर. सो जो कॉन्सेप्ट था ना, इट इज़ क्वाइट अ रिवोल्यूशनरी थिंग ऑल्सो अगेन, बिकॉज टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इट ओपन्स अप लॉट ऑफ होराइजन इनटू योर माइंड. जब आप चीज़ें विजुलाइज करने लगे, आपने मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया, बट दोज नंबर्स विल नॉट लेट यू विजुलाइज. इट इज़ डिफिकल्ट टू विजुलाइज द नंबर्स, few people could able to visualize the numbers, but it is really difficult for a normal mind to visualize the numbers. तो when this lines of force का जो concept उसको दिया था फैराडे ने, so it is really interesting to visualize those things. और उस visualization की वजह से you could able to do a further research into this field. ठीक है, कि electric field, magnetic field, how they interact. So that is like a fundamental that is like a initial point. From there you started building up a lot. ठीक है, उसके बाद ही Maxwell started building up and he has given a mathematical formulation of Maxwell equation जो हमारी है कि electromagnetic waves, he has unified it because के he could able to visualize it. ठीक है, so that is a power of visualization. Even in the physics also, whenever you are solving a problem, आपको कोई problem एक statement दे रखी है, if you visualize that problem ना, जो भी आपको दी हुई है, so half of the problem has been solved if you visualize it. So visualize करने के लिए first thing is you need to understand जो भी लिखा हुआ है. वो एक another is important issue with a lot of aspirants के जो लिखा होता है ना, that is you could not able to grasp it because time constraint होता है एक. तो the first fundamental issue that comes up कि जो हमारा लिखी हुई है चीज़ें जो हमारे को क्वेश्चन पेपर में दी रखी है within a time constraint to understand that. तो आपको वो स्मूथ करना है ना. बेस्ट थिंग इज ये थ्योरी के साथ साथ यू स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब आप प्रॉब्लम एक जैसी प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम्स आप सॉल्व करेंगे, मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे ना, तो आपका ब्रेन एक क्या होगा ना, प्लास्टिसिटी बन जाती है, रिलेट कर जाएगा. जैसे ही आपने वो क्वेश्चन देखा, यू स्टार्टेड रिलेटिंग दोज थिंग्स. तो जैसे ही आपने रिलेट करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी. जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे क्वेश्चन, आप अंडरस्टैंड करते जाओगे, साथ साथ विजुलाइज करते जाओगे. ठीक है, क्या होता है नॉर्मली आपने कभी सिचुएशन विजुलाइज नहीं करी, आप पढ़ रहे हो, तो आपका ब्रेन उसको विजुलाइज करेगा धीरे धीरे. अगर आपने ऑलरेडी वो क्वेश्चन या किसी भी एक छोटा सा भी वो उस तरीके का उस लाइन ऑफ थॉट से कोई क्वेश्चन ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है, तो क्या होगा ना, आप जैसे वो क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, आपके दिमाग में साथ साथ विजुलाइजेशन चल रही होगी. सो दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर स्पीड. सो दैट्स वाई इट्स मीन सेड कि आप जितना एग्जाम्पल सॉल्व करो, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, इट मीन्स एनहांसिंग योर विजुलाइजेशन पावर. जैसे जैसे आपकी पावर विजुलाइजेशन इंप्रूव होती जाती है, यू कुड एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो थ्योरी एक पार्ट है, थ्योरी आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छा है. उसके बाद because you don't have a unlimited time to solve the problems, you have a limited time to solve the problems. ठीक है, for that you need to have a strong visualization power. वो कब आएगी कि आप multiple set of questions लगाएंगे आप. So that's why keep on solving the problems as soon as you are studying the theory. Try to solve multiple problems. It is going to help you visualize. ठीक है, तभी ताकि आप जो क्वेश्चन दे रखा है साथ के साथ विजुलाइज करके, साथ के साथ उसको अपने दिमाग पे उतार के और साथ के साथ पेपर पे उतार के उसको in a faster way you started solving it. चलो, वी गॉट ट्रैक बिकॉज ऑफ दिस विजुअलाइजेशन. सो विल कम टू द टॉपिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स है हमारा कि अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे थे, वी आर सीइंग इट इन अ मैथमेटिकल टर्म कि इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी दिस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नाउ वी विल सी इट विजुअलाइज के हाउ it is coming out if we have to visualize it. So lines of force has been given by Faraday. So to visualize the direction and the strength of electric field, so it is not just the point where we are seeing the continuous way okay, we are visualizing it, the direction and the strength of electric field. So it is like how it is thing कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज इफ इट्स बीन अलाउड टू मूव फ्रीली, हाउ इट इज़ गोइंग टू मूव. ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट ही इट इज़ गिविंग अस द लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, तो अगर लाइन्स ऑफ फोर्स है हमारी, ये लाइन्स ऑफ फोर्स बन रही है, सो दैट मीन्स कि उस सोर्स चार्ज के साथ हमने कोई एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा हुआ है बहुत छोटा सा, उसके मूवमेंट से ही हम एनालाइज कर रहे हैं लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, सो मैथमेटिकली वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को किसी पॉइंट पे चाहिए के क्यू बाई आर और रेडियल डायरेक्शन में, दैट वी हैव सीन मैथमेटिकली. लाइन्स ऑफ फोर्स इज द विजुअलाइजेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ऑफ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
visualization or the pictorial representation in a given space. So and the direction हमारे को दी जाती है कि हमारी जो lines of force हैं, it gives the direction of net electric field at that point. Net electric field comes out to be because of multiple charges. ठीक है, अगर एक चार्ज है तो उसकी वजह से वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी चार्ज की वजह से होगा. अगर मेरे मल्टीपल चार्जेस हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो मेरी आ रही होगी वो जो लाइन्स ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल लाइन्स ऑफ फोर्स, इट इज़ गिविंग मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट दैट पॉइंट. वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, इट इज़ दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो विल सी दिस पॉइंट in the coming part. Okay, so this is what we are having in lines of force. Now we are going to see the important properties of lines of force. ठीक है, कि जिसकी वजह से just after seeing this we could able to visualize कि यहाँ पे फील्ड कितना होगा, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्या किस डायरेक्शन में मेरी टेंडेंसी होगी पार्टिकल के मूव करने की. ऑल दोज थिंग्स यू could able to visualize this. पहले देखते हैं हमारा कि E at a point is tangential to the field of points. ठीक है, suppose this is my field of lines. सो फील्ड ऑफ लाइन बेसिकली आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो फील्ड ऑफ लाइन बेसिकली इस तरीके से होती हैं. ठीक है, दिस इज़ माय फील्ड ऑफ लाइंस. विल सी दिस थिंग. सो सपोज दिस इज़ माय पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. दिस इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक अ विजुअलाइजेशन कि दिस माय फील्ड ऑफ लाइंस. ठीक है, इस तरीके से माई इफ़ आई पुट माई इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हियर, सो इट विल फॉलो द दिस फील्ड ऑफ लाइन. इट मे नॉट फॉलो द सेम ट्रेजेक्टरी, इट मे नॉट फॉलो द सेम ट्रेजेक्टरी बिकॉज इट माइट बी हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट एक्सेलरेशन बिकॉज दिस इज गिविंग यू द एक्सेलरेशन और द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो unit positive charge, it is, if we keep it, so unit positive charge, it is following that this trajectory only. ठीक है, if for another particle if we are taking it and if the velocity and acceleration is in the same direction, we can say it is following the same trajectory. If the velocity and acceleration are in the different direction, acceleration की direction तो ये tangential होगी मेरी. ठीक है, acceleration की direction will always be tangential to this curve, but velocity may be different. So जिसकी वजह से मेरा we have seen it in the kinematics जब हम plane motion in a plane पढ़ा था, अगर velocity और acceleration की direction में some angle है, so the trajectory will be different. Trajectory will not be along the line of acceleration or along the line of force. ठीक है, these are my force line. अगर मेरे को Q नॉट चार्ज है, so Q नॉट चार्ज will be moving in this direction. ठीक है, so this is how my field of line has been shown when we have the multiple charges. अगर सिंगल चार्ज लगा है तो सिंगल चार्ज की वजह से we are having a different line of force. We will going to see that. तो it is just to give you an intuitive feel कि किस तरीके से मेरी line of force दिखती है. सो अब थोड़ा बेसिक से पढ़ते हैं. और हर जो मेरी लाइन ऑफ फोर्स होती है उस पर किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आई जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट. इट इज़ गोइंग टू गिव मी द direction of electric field at that point if I'm going to draw the tangent. So that is the first property, tangent to the field lines at each point. It is the force on the small positive charge. ठीक है, it is a force on the small positive charge. So अगर मेरा small positive charge ये है, so this will be the force on this. Small positive charge अगर मेरा Q नॉट इधर है, so this will be the force on this. So tangent to the field lines, it is going to give you the electric field, net electric field at that point. ठीक है, and this electric field can be because of this Q1, Q2, मल्टीपल चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और सिंगल चार्ज की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, एक चार्ज है तो एक की वजह से होगा, मल्टीपल है तो मल्टीपल की वजह से होंगे. सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज़ माय कि जितनी क्लोज फील्ड लाइंस होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जैसे मैंने यहाँ पे देखा, सो इफ़ द लाइन्स आर क्वाइट डेंस, सो इस यहाँ पे आई कैन से माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग, दिस रीजन इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये वाला रीजन देखो, दिस रीजन इज़ अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यू कैन सी इट कि ये सेम सरफेस से आई एम हैविंग मल्टीपल लाइन्स पासिंग थ्रू, 1 2 3 4 लाइन्स पासिंग थ्रू. और यहाँ से सेम एरिया मैंने लिया एंड इट इज़ ओनली 1 लाइन इज़ पासिंग थ्रू. सो जिस तरीके से मेरा ये लाइन मूव कर रही है, सो दिस लाइन लेटरली दे आर स्प्रेडिंग अप. लेटरली जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ, सो दे आर स्प्रेडिंग. सो दिस लाइन आर स्प्रेडिंग. ठीक है, दूर दूर जाती जा रही है लेटरली. सो जब ये लाइन लेटरली मूव कर रही हैं आपस में, दे आर रिपेलिंग ईच अदर. सो जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग at a inverse ratio of squares. That is the inverse square rule also they follows. So here also we have seen जितना डेंस लाइन है, सपोज ये ऐसे है, इतनी डेंस लाइन है, सो इस पोजीशन पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल मोर, इस पोजीशन पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल लेस. जितनी डेंस लाइन होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो अ इन्वर्स स्क्वायर लॉ. इन्वर्स स्क्वायर लॉ कैसे कहता है कि जैसे मेरा जितना दूर हम जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी उसके स्क्वायर से कम होती जाएगी, इन्वर्सली स्क्वायर से कम होती जाएगी. सो फॉर इंस्टेंस दिस इज़ माई सोर्स फील्ड, क्यू है ये मेरा. सो अगर मेरा यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज का हमारा, सो दिस इज़ माई
दिस इज़ माई पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक रेडियल लाइक दिस. ठीक है, सो विल सी इट लेटर बट फॉर टू अंडरस्टैंड हेयर. सो दिस इज़ माई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है. इसका रेडियल फील्ड लाइक गो लाइक दिस इन ऑल द डायरेक्शन. स्फेयर है ये, इट विल गो इन ऑल द डायरेक्शन. सो जैसे जैसे ये दूर दूर जाता जाएगा, सो सपोज दिस है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, सो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई इट विल कवर्ड बाय दिस मच एरिया. ठीक है, नाउ अब सेम एरिया जो है इट विल बी कवर्ड अप, इट सेम एरिया जो है ये E/4 कवर करेगा. ठीक है, सेम एरिया मेरा ये मेरे हो गए. इफ़ एट अ डिस्टेंस 2r मैं पहुंचा, ठीक है, मैंने बोला ना जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इट विल इन्वर्सली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग एट अ स्क्वायर रेट. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए था, ए एरिया के लिए दिस इज़ माई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मेरा 2r गया, दिस एरिया दिस हर एक एरिया से नाउ इट विल बी बाय माई E/4. ठीक है, हर एक एरिया से टोटल इंटेंसिटी वही रहेगी. नाउ माई एरिया गॉट इंक्रीज, सो हर एक एरिया से माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E/4. और मैं आगे गया मैं 3r पे गया. नाउ दिस एरिया गॉट डिवाइडेड, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 9 सेगमेंट्स, और हर एरिया से मेरा E/9 जाएगा. ओवरऑल मेरा अभी भी ई आएगा बट हर एरिया से मेरा E/9 जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टू कवर अप द सेम ई आई हैव टू इंक्रीज माई एरिया. ठीक है, टू कवर अप द सेम ई. अगर मेरे को यहाँ पे ई था मेरा, इस एरिया में कवर अप हो रहा था, यहाँ पे सेम ई मेरा जो होगा ई होगा इस बड़े एरिया में. 4 टाइम्स ऑफ ई एरिया चाहिए होंगे मेरे को ऐसे, तब कवर अप होगा. सेम में और अगर 3r डिस्टेंस पे दूर चला गया तो मेरे को 9 टाइम्स ऑफ दिस एरिया चाहिए होगा टू कवर अप द सेम ई. सो दैट इज यू कैन सी इट और यू कैन सी इट इन अ मैनर कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो वो जो एरिया है उसका E/4 यहाँ पे हो गया बिकॉज इट इज़ 2r, और यहाँ पे हर एक एरिया से E/9 जा रही है. ठीक है, इट इज़ स्प्रेडिंग, इट इज़ द इंटेंसिटी इज़ कीप ऑन रिड्यूसिंग एट अ स्क्वायर ऑफ माई. सेम वे अगर स्क्वायर ऑफ माई डिस्टेंस अगर ये 44r पे हो गया तो दिस एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू 14 सेगमेंट, तो हर एक किसी से E/16 पास ऑन करेगी. सो दिस इज हाउ माई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. उसका जो मैग्नीट्यूड है इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, सो सेम वे अगर इसी एरिया को मैं यहाँ पे रख दूँ, सो इस एरिया से केवल मेरा E/4 लाइन जारी होगी, E/4. सो नाउ यू कैन सी द इंटेंसिटी इज़ बिन रिड्यूस. यहाँ पे इंटेंसिटी मेरी E थी, यहाँ पे इट गॉट रिड्यूस टू E/4. सो दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग कि जितना मेरा क्लोजर रहेगा यहाँ पे डेंस रहेंगी लाइंस, माई इंटेंसिटी विल बी मोर, और जितना मेरा लाइंस स्प्रेड अप होंगी और उतना ही मेरी इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज. ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है कि लेटरली इट विल, सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल गो इन अ लेटरल डायरेक्शन और इन अ along, if we see this direction is my along डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन में भी मूव कर रही है ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ 1 2 3. सो इस वाली डायरेक्शन में भी है इस वाली डायरेक्शन में इट विल कीप ऑन स्प्रेडिंग. आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में ये वाला डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल लेटरली इट विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में इट विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग, लेटरली. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट वाले में ये कह रहा है नो फील्ड लाइन विल टर्मिनेट और ओरिजिनेट फ्रॉम द इन मिडिल ऑफ द स्पेस. ठीक है, कोई भी फील्ड लाइन मिडिल ऑफ द स्पेस से नहीं होगी. जितनी भी फील्ड लाइन्स होंगी दे ओरिजिन फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट और एंड एट नेगेटिव पॉइंट और एंड एट इन्फिनिटी ओनली. ठीक है, दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ एनी स्पेस. ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इधर इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट और इट विल एंड एट अ इनफाइनाइट पॉइंट ओनली. ठीक है, so it is saying no field line will terminate or originate from the space. Field lines is always smooth and continuous because the charge because these charges are stationary. If these charges are moving, then only we can say the field lines will be moving and it will not be continuous and stationary. If we consider the charge are stationary, we can say okay, our field lines are smooth and continuous. Okay, so always the field lines will be will have a will originate from the positive charge and end at the negative charge. If positive is greater than negative, अगर मेरे पॉजिटिव के चार्जेस अगर मेरा पॉजिटिव सपोज है 2q है और यहाँ पे q कम है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर. सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी दे विल एंड एट इन्फिनिटी. सो दे विल गो अप टू इन्फिनिटी. दे विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन, दे विल गो अप टू इन्फिनिटी. और अगर जो मेरा ये जो इसका प्लस q वाला पोर्शन है उसकी सेम लाइन ऑफ फोर्स दे विल एंड अप इन नेगेटिव चार्ज. और जो एक्स्ट्रा वाली जो फील्ड फोर्सेस होंगी जो कंपनसेट नहीं हो पा रही होंगी किसी भी q से, दे विल गो अप टू माइनस q से दे विल गो अप टू इन्फिनिटी. सो इफ प्लस q चार्ज मेरा इज ग्रेटर देन माइनस q चार्ज है, देन
some line will end up at infinity far far away. Okay, मेरा आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज है, अगर मेरा सिंपल आइसोलेट ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल एंड अप एट इन्फिनिटी बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव चार्ज to consume this electric lines, so it will end up at infinity, so it will go up to infinity, it will not stop in between. Same way अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है, so इनफाइनाइट से लाइन्स आ रही होंगी एंड इट विल बी एंडिंग अप एट नेगेटिव. ठीक है, सो ओरिजिन विल बी इनफाइनाइट व्हेन आई एम हैविंग द नेगेटिव आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज. अगर मेरा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है देन एंडिंग इज एट इन्फिनिटी एंड देर इज़ नो क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, दे विल ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड ऑन दिस और दे विल ऑलवेज स्टार्ट एंड गो अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो दे विल ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड ऑन द नेगेटिव. पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होंगी और अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव है सो they will go up to the infinite. They will never form a closed loop, they will never go like this from here to here and from here to here, so they will never form a closed loop. Okay, now another important property is they never intersect, because if they will intersect two lines of forces, if they are intersecting, so this point is having two direction of electric field and which is not possible. We can only have one direction of electric field. ठीक है, so the net electric field will always come in one direction because आपने सारी electric field को सारे electric field का net निकालना है, because इस दिस पॉइंट पे देर मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम मल्टीपल चार्जेस. ठीक है, ये Q1 Q2 Q3 इन सब की वजह से चार्जेस, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर, बट उनका नेट जो आएगा उसकी तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, उसकी एक ही डायरेक्शन होगी. सो दैट डायरेक्शन इज अलॉन्ग द टेंजेंट. और यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स उस नेट की ही दो डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल, सो दे नेवर इंटरसेक्ट. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इफ एवर इंटरसेक्टिंग, सो दैट इज अ रॉन्ग ग्राफ इफ इट्स बीन गिवन, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट. राइट, नेक्स्ट इज field lines do not pass through the conductor. This is all we have seen it here. Okay, these field lines will never pass on to the conductor. अगर कंडक्टर मेरा रखा हुआ और it is at a stationary equilibrium, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, सो तब क्या होता है, मेरा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट ज़ीरो बिकॉज जो मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से दैट विल काउंटर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इनसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी ज़ीरो. Electric field inside comes out to be zero in that case. Okay, so this point is saying the same thing. Field lines will never pass through a conductor because electric field inside is zero and it will perpendicular to the surface. अगर so ये मेरा कंडक्टर रखा हुआ है, so the electric field will always perpendicular to the surface. अगर ये electric field lines ऐसे आ रही हैं, so charge distribution will be like this. so यहाँ से जो भी lines आ रही होंगी they will consumed into this negative. ठीक है, same way जो अगर यहाँ से extra आ रही हैं lines, so they will go up to the infinity. और same it is coming out from here because a positive way it will come out from here and it will be, and they will always be perpendicular because in electrostatic equilibrium we know charge is stationary at the surface for the conductor. तो यहाँ पे there is no charge movement. अगर इसका ये perpendicular नहीं होगा there will be a parallel अगर ये electric field will not be perpendicular, so there is a parallel and the perpendicular component होगा electric field का E perpendicular and E parallel. So जो parallel वाला होगा that will create a electric field जिसकी वजह से the charge started moving in this direction. So that is not a electrostatic equilibrium position. So we can say कि in a electrostatic equilibrium position, after all the charges arranging themselves in a manner like this, and at that point the electric lines of force will be entering like this and will be exiting like this from here, and there is no electric lines of force inside, the conductor. So that is what the fundamental principle for our electric shielding also. Okay, electric lines of force in the conductor will be zero. So perpendicular to the surface they will end up perpendicularly onto the surface of conductor and they will initiate perpendicularly from the conductor only. Okay, now we'll see the field lines because of the individual charges, multiple charges. इनकी वजह से field lines देखते हैं थोड़ा. Okay, so direction of field lines will give you the intensity of electric field, force or the acceleration of the positive charge. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसमें अगर इसको रेस्ट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा है, so it will keep on moving in this direction.
इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में कभी मूव कर दूँ, देन द ट्रेजेक्ट्री विल बी डिफरेंट बिकॉज एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. कुछ एक एंगल आ जाएगा जिसकी वजह से माई ट्रेजेक्ट्री विल बी डिफरेंट, क्योंकि जो मेरा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन होगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मेरा एक्सेलेरेशन का होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज गोइंग टू change the direction. So in that case the trajectory of the particle is not same as line of force. ठीक है, अगर मेरा velocity is given along the line of force, in that case if the velocity and the acceleration is same line, then in that case we can say trajectory of the particle and the lines of force are same. अब अगर मेरा velocity और acceleration के बीच में angle है, and then in that case we can say it will move in a plane, it will not be having the trajectory will not be along the line of force. Okay, so that is what has been written here, that trajectory of the particle is not always as the line of force. So अब देखते हैं isolated positive charge है, इसकी lines of forces क्या होंगी. So lines of forces of positive charge will be away from it, it will be starting from it and ending at infinity. If it's an isolated positive charge, it is radially outward till infinity. There is a spherical symmetry. Spherical symmetry का मतलब है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को सब डायरेक्शन में I'll be seeing the same way. ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ सेंटर से, इफ़ आई लुक एट स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब इफ़ आई लुक फ्रॉम हेयर आई विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड every place it looks same to me if I see it from this point. ठीक है, if I see it from the point of charge I'll see the electric field will be same to me in each and every direction. ठीक है, हर डायरेक्शन में मेरे को सेम मूव करता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, सेम वे अगर मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव दे रेडियली इनवर्ड होती हैं, दीज आर रेडियली इनवर्ड, and this is just a 2D representation. 3D representation of this is like this. So actually it will be a 3D all three direction में इसका it will go all three direction में it will be radially outward. ठीक है, this is a 3D representation. This is a 2D representation of the plus charge. So यहाँ पे भी plus isolated charge है, so this is a 3D representation. ठीक है, जो जितना भी पास में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कम होता जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कम, मतलब ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये एरो तो सेम रहेगा डायरेक्शन इसका, बट अगर हम देखें ओवरऑल एरिया के टर्म्स में इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, जैसे हमने इसमें देखा था ना इसमें. सो डायरेक्शन ऑफ ई तो यही रहेगा इसमें. ठीक है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड भी ओवरऑल ये रहेगा, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ये रहेगा. सो बट यहाँ पे मैं एरो यहाँ पे डोंट कंफ्यूज एरो विद द मैग्नीट्यूड इज़ नॉट द एरो हेयर. ओके, तो एरो सेम रहेंगे यहाँ पे. एरो वी आर नॉट लाइक के पास में है तो बड़ा एरो बनेगा, दूर होगा कम होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो इट इज़ रेडियली आउटवर्ड. ओके, सो this is how the 3D representation of our positive charge. So it will spread over all together in three dimensional space. This is a 2 dimensional. So negative का क्या होगा, it will be radially inward. It will be radially inward. It is originating from infinity and ending up at negative, and it is also spherically symmetric. अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ तो मेरे को हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही दिखाई देगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम ही दिखाई देंगे. नाउ अनदर केसेस में के 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं मेरे. ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, दैट मीन्स कि दे विल यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, तो फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स विल नॉट बी एंटरिंग इन एनी ऑफ देम. सो फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी गोइंग अवे फ्रॉम इट. ठीक है, यहाँ से देखेंगे फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इज गोइंग अवे, ऑल द फील्ड लाइन सेम वे, यहाँ से फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इज गोइंग अवे. सो दीज आर माई फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस एंड देर इज़ नो सच, बिकॉज दिस इज पुशिंग, दिस इज ऑल्सो पुशिंग, दे आर रिपेलिंग. ठीक है, दे आर रिपेलिंग बिकॉज नेगेटिव नहीं है. सो दीज आर रिपेलिंग, ये दोनों रिपेल कर रही हैं, और दोनों ये यहाँ से यहाँ तक दोनों हम देखें, दोनों का कर्व भी सेम ही रिपेल हो रहा है. अगर ये इसका मेरा पॉजिटिव ज़्यादा होता सपोज, तो इट विल गो अप टू हेयर एंड देन रिपेल, और ये वाले का कर्व पहले ही बेंड होना शुरू हो जाता अगर ये मेरा चार्ज कम होता और ये मेरा चार्ज ज़्यादा होता. ठीक है, ये पॉजिटिव है दोनों. अगर ये वाला 2 वाला मेरा चार्ज ज़्यादा होता तो इट विल पुश इट मोर. ठीक है, ये यहाँ पे जाके बेंड होता और ये यहाँ पे जाके पहले ही बेंड होना शुरू हो जाता. विल सी दैट एग्जांपल ऑल्सो. तो यहाँ पे हमारे इक्वल ही बेंड है, दोनों डायरेक्शन, दोनों इसमें इक्वल बेंड आ रहे हैं. सो वी कैन से Q1 इज इक्वल टू Q2. ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2 एंड देयर इज अ न्यूट्रल पॉइंट हेयर. न्यूट्रल पॉइंट मतलब दिस रीजन इज न्यूट्रल, नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नो फील्ड इज देयर. दैट मीन्स कि इसकी वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे आएगा, Q0 चार्ज पे आएगा, इसकी वजह से इस Q0 चार्ज पे आएगा, दैट विल बी सेम एंड मेक इट न्यूट्रल पॉइंट at which my electric field is 0.
नाउ दिस इज़ नॉट रेडियली सिमेट्रिक, दिस इज़ माई सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक. सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक का मतलब इन दोनों लाइन ऑफ चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा मेरा, इस लाइन ऑफ, ये मेरी सपोज ये मेरी लाइन है, ठीक है. दिस लाइन इज़ माई लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस. अब इस लाइन को लेते हुए कोई भी प्लेन में बना लूँ, ठीक है, कोई भी प्लेन में बना लूँ ये लाइन को लेते हुए, और उस प्लेन के ऊपर और नीचे आई विल सी कि बोथ द साइड्स माई इलेक्ट्रिक फील्ड्स लुक सेम, ठीक है. दैट इज़ व्हाट माई सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, के इस लाइन को लेते हुए मैं कोई भी प्लेन बना लूँ इन एनी डायरेक्शन, इस लाइन को लेते हुए, बस दिस लाइन शुड बी देयर इन दैट प्लेन, ठीक है. दिस लाइन शुड बी देयर इन दैट प्लेन, एंड तो सो दैट प्लेन शुड रोटेट अबाउट दिस लाइन, दिस एनी प्लेन विच विल रोटेट अबाउट दिस लाइन, ठीक है. जो भी प्लेन में ले लूँ दैट शुड रोटेट अबाउट दिस पॉइंट. सो मेरे ऊपर का और दोनों साइड के जो मैं अगर मैं लाइन ऑफ फोर्सेस देखूँ दैट विल लुक सेम्स टू मी, सो दैट विल कॉल अ सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक. सेम फील्ड पैटर्न फॉर ऑल द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है. सेम फील्ड पैटर्न फॉर ऑल द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग देम. इस पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे वी हैव सीन ना कि यहाँ पे दोनों का कर्व मेरा सेम है ऑलमोस्ट. यहाँ पे हमने देखा ये Q2 इज़ पुशिंग दिस Q1 लाइन्स मोर, ठीक है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक इसको ज़्यादा पुश कर रहा है. Q1 इज़ पुशिंग मोर, Q2 इज़ पुशिंग मोर Q1, ठीक है. सो दैट मीन्स Q2 इज़ मोर देन Q1. क्या यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स का बेंड लेटर बहुत देर जाके हो रहा है, और यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स का बेंड जल्दी हो रहा है. सो दैट मीन्स इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है इस पर Q1 पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है. Q2 का इम्पैक्ट Q1 पे ज़्यादा आ रहा है. सो वी कैन से Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1, ठीक है. जितना लेटर ऑन जाके पुश हो रहा है दैट मीन्स उतना ही उसका हाई इंटेंसिटी है, ठीक है, उतना ही उसका हाई इंटेंसिटी है. जो जल्दी कर्व होके पुश हो रहा है, जो जिसके लाइन ऑफ फोर्स जल्दी कर्व होके पुश हो रही है, उसका इंटेंसिटी मेरी कम है. सो इन दिस वी कैन से Q2 इज़ मोर देन Q1 जो मैग्नीट्यूड है, एंड बोथ आर पॉजिटिव बिकॉज दे आर रिपेलिंग. कोई न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे सेंटर में है, दे आर रिपेलिंग, सो बोथ आर पॉजिटिव. एंड दिस इज़ ऑल्सो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, के इस वाली लाइन को लेते हुए कोई भी मैं प्लेन बनाऊँ अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है. सो दैट विल ऑलवेज कट माई लाइन्स इन अ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल मैनर, ठीक है. ये मेरा 5 चार्जेस हैं, मेरे 5 चार्जेस का इट इज़ लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमुलेशन ऑफ 5 चार्जेस. ये प्लस है, माइनस है, ठीक है. सो यहाँ पे देखेंगे ये प्लस साइन है, ये सारा का सारा जाके ये दैट मीन्स ये जो प्लस है इसकी कुछ एक लाइंस मेरी एक्स्ट्रा भी जा रही हैं. सो इट इज़ हैविंग मोर चार्ज, ठीक है, इट इज़ हैविंग मोर चार्ज. सो ये प्लस के कुछ एक जाके इसमें कंज्यूम हो रही हैं नेगेटिव में, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें फील्ड लाइंस को सपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर पूरी की पूरी फील्ड लाइंस जा रही हैं. सो इसका जो भी चार्ज होगा इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज इसकी एक्स्ट्रा इधर भी जा रही हैं, ठीक है. और फिर ये इसके साथ भी पुश करा के इसको रिपेल करा रहा है, ठीक है. और ये इसका जो पुश आ रहा है ये दूर है और इसका पुश पास में है, तो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है. इसके साथ भी देखो इसको, इस सारे चार्जेस को इसने इधर की ऐसे पुश करा रखा है, इसके सारे चार्जेस को इधर पुश करा रखा है. दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इस पर लग रही है, ताकि इसकी फील्ड ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स यू सी इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो रही है मेरी, इट इज़ गोइंग, जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ गोइंग इनसाइड. सो दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इट इज़ गोइंग इनसाइड, इट इज़ माई नेगेटिव चार्ज. अगर नहीं भी दिया हुआ फ्रॉम हेयर यू कैन सी दिस माई नेगेटिव. और इंटेंसिटी हम लोग कैसे देख रहे हैं कि दिस इज़ हैविंग दिस, यहाँ पे पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके नेगेटिव में, इधर इट इज़ रिपेलिंग, ठीक है. और इन दोनों में रिपल्शन है, बट ये वाला जो है इट इज़ हैविंग इसका हम देखेंगे कर्व, इट इज़ हैविंग मोर पुशिंग, ठीक है. ये लेटर ऑन जाके कर्व पुश हो रहा है, और यहाँ पे कर्व देखो कितनी जल्दी पुश हो रहा है इसका, ठीक है. दैट मीन्स इट इज़ हैविंग लेसर मैग्नीट्यूड, इट इज़ हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, ठीक है. दिस सेंट्रल पॉइंट इज़ हैविंग मोर मैग्नीट्यूड आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, और दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है. और यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है नेगेटिव, ठीक है. ये नेगेटिव, और नेगेटिव जो है देयर इज़ नो नेगेटिव, कोई एंड से नहीं आ रहे, कि जितना ये भी पॉजिटिव है पूरा का पूरा नेगेटिव को भी कंज्यूम कर रहा है, इस वाले नेगेटिव को भी कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, इन चारों को रिपेल कर रहा है. इसका कोई इंट्रैक्शन इस नेगेटिव के साथ नहीं है, इसका इंट्रैक्शन इस नेगेटिव के साथ है, इस पॉजिटिव का इसका नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन है ये वाला. ये इफ़ यू सी दीज आर हैविंग द इंट्रैक्शन हेयर विद दिस नेगेटिव. Okay, it is how you will see, you will visualize the electric lines of force. This is a 4 point electric lines of force, ठीक है. नेक्स्ट, सो अभी हमने जो ये वाला पोर्शन देखा था, ये दो लाइन्स ऑफ फोर्स का, हेयर वी आर गोइंग टू सी इन द सेम मैनर, ठीक है. सो यहाँ पे हमने देखा ये काफ़ी
ये वाली जो Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड इट्स गोइंग टू पुश इट, सो दैट मीन्स ये लेटर ऑन जाके बेंड हो रहा है, और ये इसकी जो B की बेंडिंग है ये नियर टू दिस चार्ज Q है, ठीक है। तो दैट मीन्स Q का मैग्नीट्यूड मेरा, ये जो मेरा Q2 का मैग्नीट्यूड कम होगा, बिकॉज इसकी बेंडिंग नियर हो रही है, नियर टू दिस Q2 हो रही है, सो इसको ज़्यादा पुश मिल रहा है फ्रॉम द अदर साइड, एंड इट इज़ गेटिंग ए पुश फ्रॉम हेयर। ये पहले तो स्ट्रेट जा अपनी नेचुरल वे में जा रही है, एंड देन इट इज़ पुशिंग इट, ठीक है। सो दैट मीन्स Q1, इससे तो पता लग गया मेरे को, बिकॉज अगर ये मेरा ऐसे होता, बिल्कुल सेंट्रली जाके पुश हो रहा होता ये, सो देन आई कैन से बोथ आर हैविंग द सेम अगर इनका कर्व ऐसे होता, सो आई कैन से बोथ आर हैविंग द सेम चार्जेस, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होते हैं। अब क्या है यहाँ पे, ये यहाँ तक तो स्ट्रेट जा रहा है और फिर यहाँ पे जाके पुश हो रहा है, सो दैट मीन्स Q1 is greater than Q2 because it is pushing a lot Q2. So Q2 का जो bending है, it is near to the charge. Q2 bending is near to the charge, so we can say okay, this charge is lesser, this charge is less, so Q1 is greater than Q2. That is what we got, and this is radially going outward, and this is radially going inward, so we can say this is a negative charge, this is a positive charge. If it's not been given, it's given to you. If it's not been given, you can analyze how the charge is going. So here it is spreading out, here it is going in, so radially going out, radially going in, it's a positive, it is a negative. Okay, another way you can see कि इसकी तीनों की तीनों लाइनें, तो ये 6 लाइनें हैं, इट विल ऑल गेट इनटू इट, ठीक है। इसके अलावा सम लाइन्स आर गोइंग अवे, सो ऑब्वियसली इट इज़ शोइंग, इट इज़ हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, इट इज़ हैविंग मोर मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड इफ़ यू सी द नंबर ऑफ लाइन्स, इफ़ यू सी इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so it is having 12 electric lines. And how many electric lines it is having? 1 2 3 6 electric lines. So that means इसका जो चार्ज है, it is almost double. So it is Q1 is 2 times of Q2. Q times of Q2. So because इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है पूरी की पूरी, एक तो इसमें कंज्यूम हो रही है नेगेटिव में, और ये फिर देन इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू द इन्फिनिटी ऑल्सो. ओके, सो वी कैन से, सो इट इज़ 12 लाइन्स एंड इट इज़ 6 लाइन्स. So I have only taken these 3, so it should be 1 2 3 4 5 6, और नीचे की भी होनी चाहिए, so it will be 12 lines and it will be 6 lines. Okay, so and the neutral point is this point at which no electric lines force off there. इसमें देखते हैं, दिस इज़ माई नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड दे आर बोथ इक्वल, सो इक्वल हैं, तो वी कैन सी द कर्व इज़ स्मूथ लाइक दिस, इट इज़ नॉट बेंडिंग नियर टू एनी ऑफ द, जो बेंडिंग हो रही है दैट इज़ इक्वली फ्रॉम बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस से इक्वल पोजीशन पे बेंडिंग हो रही है. दिस, ये बेंड ऐसे हो रहा है, ये बेंड ऐसे हो रहा है, तो दोनों का सेम है. ऐसे नहीं है कि यहाँ से जाके ऐसे बेंड हो रहा है. अगर ऐसे बेंड हो रहा होता दैट मीन्स कि माई क्यू दिस नेगेटिव चार्ज इज़ मोर देन पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ऐसे आ रहा होता, सो माई नेगेटिव चार्ज इज़ मोर देन माई पॉजिटिव चार्ज, अगर ऐसे हो रहे होते मेरे. बट यहाँ पे दोनों मेरा जो कर्व हैं दैट इज़ बेंडिंग इक्वली, सो वी कैन से कि बोथ आर हैविंग द इक्वल चार्जेस. और यहाँ से एंट्री कर रहा है, सो रेडियली इन्वर्ट जा रहा है, सो दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव. और अगर मेरे को किसी पॉइंट पे देखना है, सो इस पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इस जो भी मेरा टेंजेंट होता है दैट गिव्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ द चार्जेस. अब नेट कैसे निकालते हैं? जो नेगेटिव की वजह से इधर होगा क्यू नॉट पे, अगर मेरा क्यू नॉट एक चार्ज रखा है मेरा यहाँ पे, सो नेगेटिव की वजह से इधर होगा, पॉजिटिव की वजह से इट इज़ हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है. नेट क्या होगा? अलॉन्ग द टेंजेंट, दिस इज़ माई नेट. सो नेट जो होगा दैट इज़ अलॉन्ग द टेंजेंट. एट एनी पॉइंट दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, और जो नेट आएगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन, that is the tangent of this lines of force. Net is always the tangent of lines of force, and here also it is cylindrically symmetric. इसके ऊपर नीचे देखेंगे हम सेम दिखेगा. सेम वे इस वाले प्लेन को किसी भी तरीके से कट करेंगे, इस वाले लाइन के थ्रू, कोई भी अगर प्लेन मेरा पास कर रहा है इस वाले लाइन के थ्रू, देन वी कैन से ऊपर और नीचे वाला, इस वाले 2D में ऊपर और नीचे वाला सेम है, सो देयर ऑल्सो वी कैन से इट इज़ अ cylindrically symmetric system, राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. सो ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर मेरा मेटल कंडक्टर है कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल कंडक्टर विल बी जीरो, ऑल द चार्जेस विल बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर ही इंड्यूस चार्जेस होंगे, अंदर कुछ भी नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इनसाइड. So that is we have got a practical application in Faraday cages, or to save the sophisticated or the
this expensive instrument and to put it in the power in the Faraday cage, so that जो external electric field है that will not be affected. If you're conducting an experiment where you don't want an external electric field to be interact with that, so there also you can utilize this electrostatic shielding. Or to protect people from the lightning, there we can use those kind of shielding or the to protect the instrument. और अगर आप कोई बहुत हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं एंड यू नीड टू क्रिएट अ लैब, सो उस एपरेटस को वी कैन शील्ड दैट पर्टिकुलर एपरेटस फ्रॉम द सराउंडिंग, सो दैट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल नॉट कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो दैट इज वेयर ऑल्सो यू कैन हैव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नाउ आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. Electrostatic shielding is a process of limiting, it we call a screening also. So it is called a process of limiting the electric lines of force within a certain region. So हमने देखा था कि अगर कोई मेरा कंडक्टर है, if it's coming in between of the electric field, अगर मेरा ये पॉजिटिव चार्ज है तो I don't want a electric lines of force to come in this direction. ठीक है, मेरे को यहाँ पे अगर कोई मेरा person is standing there, he does not want to feel any this electric field because of this positive charge. So we have what we will do, we'll put a इलेक्ट्रिक कंडक्टर इनटू इट. बट इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखने से भी हमारा काम नहीं चलेगा. इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर का हमारा ज़ीरो होता है. अगर आप ऐसे तरीके का कंडक्टर कर दो देन इट देयर विल बी अ ज़ीरो इनसाइड. बट अगर हमारा ऐसे तरीके का कंडक्टर रखा है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अर्थ दिस साइड. सो विल सी कि ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्जेस की वजह से देयर विल बी अ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन दिस सरफेस एंड पॉजिटिव विल बी इंड्यूस्ड ऑन दिस सरफेस. ठीक है, सो यहाँ से क्या हो रहा, दिस इज माई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड हेयर इट इज़ कमिंग आउट, हेयर इट इज़ परपेंडिकुलरली कमिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्सन होगा ये ही विल ऑल्सो फील द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स कमिंग आउट. सो अब क्या होगा ना, जो मेरे सरफेस चार्जेस मेरे यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, इफ़ आई अर्थ दोज चार्जेस देन आई से कि देर विल नॉट बी एनी चार्ज हेयर. ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. जो भी चार्ज यहाँ पे आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो गई, ये नेगेटिव मेरे आ गए, ये पॉजिटिव आ गए, उसके बाद मैंने ये वाले चार्जेस को अर्थ कर दिया, तो जितने भी मेरे पॉजिटिव चार्जेस होंगे दैट विल गो टू द अर्थ. ये वाली साइड मेरी जीरो हो जाएगी. देर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस साइड. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन कि यहाँ से जितने भी मेरे इसको इस वाली साइड को मैंने अर्थ कर दिया, जितने भी मेरे सरफेस चार्जेस है दैट विल कंज्यूम इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर चले जाएंगे. दिस साइड विल बी माई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल साइड. कोई भी मेरा चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज डिस्पेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो दिस रीजन विल गेट इलेक्ट्रिकली शील्डेड. बट दिस रीजन वी कैन से इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस रीजन. सो सम if a positive charge is here, so if plus q charge is here, so from here it can have the effect because हमने बस इधर की साइड से आने वाले को स्टॉप किया है. सो टू हैव द continuous system we can have it like this. It is called a Faraday cage. It will put in a conductor, metal conductor. So कहीं से भी हमारा अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, कहीं से भी अगर हमारा कोई if we are having the electric field to a charge, और इसको हम अर्थ कर देंगे. ठीक है, कहीं से भी चार्ज आएगा इसके सरफेस पे आ जाएगा वो सारा का सारा चार्ज. ठीक है, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में आएगा इसके सरफेस से आएगा, उसको अर्थ कर देंगे, दैट विल कंज्यूम टू द अर्थ. ठीक है, सो द पर्सन सिटिंग इनसाइड और द इंस्ट्रूमेंट्स आर इनसाइड, और इफ़ वी हैव टू डू अ बिग एक्सपेरिमेंट विच इज़ जनरेटिंग क्वाइट अ हाई वोल्टेज, सो वहाँ से क्या होगा कि दैट हाई वोल्टेज शुड नॉट गो आउट. सो क्या होगा, चार्जेस विल बी एक्यूमुलेटेड हेयर एंड विल गेट अर्थ फ्रॉम हेयर. So this is a electrostatic shielding. Continuous electrostatic shielding is like a Faraday cage, hollow conductor. ठीक है, hollow conductor बना दिया हमने like this and it will be earthed. So inside electric field will be zero. Right. So this is a practical application of electrostatic shielding. Okay. नाउ एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को कि दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ द इलेक्ट्रो लाइन्स ऑफ फोर्स इट्स बीन गिवन टू अस. हमसे पूछा है कि फर्स्ट इज़ वेदर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म. दूसरा पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ योर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ए बाई क्यू बी. थर्ड पूछा है मेरा साइन पूछा है क्यू ए और क्यू बी का. फोर्थ पूछा है मेरा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा. पाँचवा पूछा है मेरा कि न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेरा 10√2-1 है. देन व्हाट इज़ माई पोजिशन ऑफ माई न्यूट्रल पॉइंट. फिर मेरे से पूछा है अगर मेरा Q0 ओके इफ़ आई पुट अ Q0 हेयर विल इट फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स. सो हमने देखा था ट्रेजेक्ट्री कैन बी इक्वल टू लाइन ऑफ फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स और मे नॉट बी इक्वल टू लाइन ऑफ फोर्स. दैट डिपेंड्स के हाउ इज़ द डायरेक्शन, हाउ इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में
क्या इंटरप्ले हो रहा है एंगल का, ठीक है, तभी वी कैन से द ट्रेजेक्ट्री और लाइन ऑफ फोर्स का क्या वेदर दे विल बी इक्वल और वेदर दे विल नॉट बी इक्वल, ठीक है. सो लेट अस एग्जामिन कि वेदर इट इज़ गोइंग टू कम अप हियर, बट इन दिस केस इट विल नॉट गोइंग टू फॉलो द line of force. It will not going to follow the 100%, it is not going to follow the line of force. The issue here is it is like if we have a q naught here, so it is like curving. So to make any curve you need a centripetal force, centripetal force, ठीक है, force, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, यू नीड अ परपेंडिकुलर फोर्स फ्रॉम इट. परपेंडिकुलर फोर्स कोई भी नहीं है बिकॉज वी हैव अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है. हमेशा हर पॉइंट पे वी आर हैविंग द टेंजेंशियल फोर्स ओनली, वी डोंट हैव अ परपेंडिकुलर फोर्स विच इज मेकिंग इट इनटू अ कर्व. सो दिस द पॉइंट, इफ वी सेंड दिस पॉइंट, it will not follow this, it will not follow the line of force path, it will not follow that. It will follow because to make a curve we have seen we need a centripetal force perpendicular to the motion, perpendicular to its velocity. but centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? या तो चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, कोई और फोर्सेस नहीं है. सो इन दैट केस वी कैन से इट विल नेवर फॉलो दिस ट्रेजेक्ट्री बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, और हमारी जितनी भी ये जो फोर्स आ रही होंगी इस पर इट इज़ अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट केस इज़ क्लियर. नाउ विल सी वेदर इट इज़ यूनिफॉर्म नहीं है बिकॉज हेयर द मैग्नीट्यूड इज़ मोर. हेयर अगर सेम ये देखूँ मैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज़ लेस, ठीक है. सो अगर यूनिफॉर्म कब होता? अगर ये ऐसे होता और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता और डायरेक्शन भी सेम होती. अब मैंने देखा यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है, और मैग्नीट्यूड, सो ये मैंने एरिया यहाँ पे लिया, ये मैंने स्लैब यहाँ पे रखी, ये मैंने स्लैब यहाँ पे रखी, दोनों जगह से माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज़ 4 ओनली. सो इन दैट केस आई कैन से इट इज़ अ यूनिफॉर्म, और इसका मैग्नीट्यूड इज़ ऑल्सो नॉट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो इन दैट केस आई कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, बट इन दिस केस वी आर सीइंग इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म. थर्ड देखते हैं, क्यू ए और क्यू बी का साइन देखते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग पॉजिटिव एंड इट इज़ कंज्यूमिंग इट हेयर. सो साइन ऑफ ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव. अब देखते हैं इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा. अगर मैं क्यू नॉट यहाँ पे रखता हूँ डी पे, सो इसकी वजह से अगर ये नेगेटिव है, सो इट विल बी पुश्ड हेयर, और ए की वजह से भी पुश हेयर होगा. सो दिस विल नॉट बी अ न्यूट्रल पॉइंट. यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे अगर न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है मेरा. अगर मैं नेगेटिव ये मेरा है, तो इसको इधर पुश करेगा पॉजिटिव क्यू नॉट को, और ये वाला इसको इधर पुश करेगा. सो दिस सी पॉइंट कैन बी अ न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है. सी पॉइंट कैन बी अ न्यूट्रल पॉइंट. नाउ विल फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 6, सो 12 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जिसमें 3 जो है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और 3 इट इज़ कंज्यूमिंग इनटू माय नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज नेगेटिव चार्ज, इसमें 6 निकल रही हैं, और यहाँ पे 12 है, इनका रेशियो आ जाएगा मेरा 12/6, दैट कम्स आउट टू बी 2, ठीक है. और क्यू ए पॉजिटिव, क्यू बी नेगेटिव. अब मेरे को निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ सी, ठीक है. सो व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज ऑफ ई ए, देन विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज ऑफ बी, और दोनों को इक्वेट कर देंगे. दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ दिस, कि ये न्यूट्रल पॉइंट की का डिस्टेंस कितना है. सो विल अज्यूम दिस इज़ माई एक्स, ठीक है. सो एंड दिस इज़ माई एल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज एल, एंड वी कैन से दिस इज़ माई एक्स, ठीक है. दिस माई एक्स. सो यहाँ पे कितना बी की वजह से कितना आएगा, के क्यू बी बाई एक्स स्क्वायर. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दिस इज़ माई नेगेटिव चार्ज, सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी के क्यू ए बाई एल प्लस एक्स स्क्वायर. एल की वैल्यू उठा के ये वाली वैल्यू डाल देंगे हम, एंड फ्रॉम हेयर एंड क्यू ए और क्यू बी का मेरे को रेशियो पता है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2, एंड फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एस 10, ठीक है. एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ से उठ के आ गई 10, राइट. ट्रेजेक्ट्री हमने देख ही लिया, इट विल नॉट बी द लाइन ऑफ फोर्स because for the line of force curve velocity and acceleration is different here. And second thing is we need a centripetal force, and there is no force, only one force it is there, electrostatic force, and which is a tangential force. So no electrostatic force, no centripetal force to make the particle move curve. अगर इसको ट्रेजेक्ट्री पे मूव करना है, इसके लाइन ऑफ फोर्स पे मूव करना है, सो इट हैज़ टू कर्व लाइक दिस, और कर्व कराने के लिए कोई सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है हमारे पास. सो वी कैन से कि पार्टिकल क्यू नॉट विल नॉट फॉलो द लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है. सो इट्स ऑलरेडी 1 hour almost 1 hour 18 minutes. So what we will do, we'll cover up this motion of a charged particle in uniform electric field in the next lecture, because we are going to cover up some of the
you need to have a strong understanding of mechanics, because here we are going to understand कि जो भी हमारी mechanical forces लगेंगी along with the electrical forces की वजह से मेरी बॉडी में क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. ठीक है. सो इसके लिए अगेन अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स होनी चाहिए. यू कैन गो थ्रू माई लेक्चर्स टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स, एंड वो मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉम्बिनेशन से विल बी स्टडिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस. विल नॉट गो डीप इनटू इट बिकॉज उन सब का प्रोसेस वही होगा सॉल्व करने का, बट विल ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी दो फोर्सेस होंगी तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट्स देयर, बट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे एंड विल स्टार्ट आवर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. विल स्टार्ट आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल आफ्टर दिस. सो आज के लिए इतना ही है. आज हमने विल टेक अ क्विक रिव्यू. आज हमने क्या क्या देखा. सो आज हमने देखा वी हैव सीन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ये हमारा एक रह गया था टॉपिक. दिस वाज सपोज टू बी डन वंस. हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था. हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड. सो हाउ इट्स बीन प्रूव्ड दैट इट इज़ क्वांटाइज्ड इज़ थ्रू द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. के व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, एंड फ्रॉम here only we have got the minimum value of E. के quantization की जो minimum value है that is 1 electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, and from this experiment only we can say the charge is always quantized. It comes with a multiple of n into E. Second, we have seen the induction of a conductor when it's been put into an electric field. In these two cases के electric field because of the metal sheet, हमने last lecture में पढ़ा था. It's a sheet only which is quite thin, which is super thin sheet, and it is non-metal. ठीक है. In that case we can say charge जहाँ पे दिया वहीं पे accumulate हो गया. अगर ये metal sheet है तो charge will be accumulated on both the surfaces. ठीक है. both the surface. अगर ये मेरी single sheet दे रखी है, we say the charge will be here one side only. ठीक है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर ये मैंने दे रखी है कंडक्टर और अ मेटल शीट, अगर ये मेरी मेटल शीट हो गई देन द चार्ज विल बी ऑन बोथ द सर्फेसेस. तब ये चार्ज फिर मेरा दोनों सरफेस पे हो जाएगा. इन दैट केस आई कैन से माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इन दैट केस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा, देन सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड हियर इन मेटल शीट ऑल्सो एंड पैरेलल प्लेट ऑल्सो. वी हैव सीन कि अगर दो पैरेलल प्लेट है मेरी एंड इफ़ वी पुट इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उन पैरेलल प्लेट में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, और दोनों साइड में दोनों साइड ऑफ पैरेलल प्लेट क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. दैट इज़ ऑल्सो वी हैव सीन इट हियर. देन वी हैव सीन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ द फील्ड लाइन्स. दैट इज़ अ विजुअलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. If we have a charges and we put a small unit positive charge, so what is the direction of that unit positive charge when we put it in the field lines? So that is a hypothetical situation only. So if we are going to put it, so in that direction it is going to go. Okay. And we have seen the properties of field lines. Then we have seen the electrostatic shielding. In the electrostatic shielding is the practical application of it is Faraday cages, and from here the last topic we are supposed to study, this topic we are going to study in the next lecture. Okay, so up to this point we have covered, so I'll meet you up in the next lecture. So all right, till then, thank you.